بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بتائیں کہ مشکل وقت گزر گیا ہے اور اچھا وقت آنے والا ہے۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کچھ ہی دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ بس برا وقت اب ختم ہونے کو ہے، اچھا وقت آ رہا ہے۔ مشکل وقت گزر گیا، اچھا وقت آنے والا ہے۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اب سے کچھ دیر بعد ہی قوم سے خطاب کریں گے اور اچھی خبروں کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ ریلیف کی خبریں آ رہی ہیں، کچھ اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر بھی آ رہی ہے کہ معاشی افق پر کئی ماہ سے جاری بے یقینی کے بادل بھی چھٹ گئے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض پروگرام کی بحالی کے لیے اسٹاف کی سطح پر معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آئی ایم ایف 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط جلد ہی جاری کر دے گا۔ عالمی ادارے نے قرض پروگرام میں 1 سال کی توسیع اور اضافی 1 ارب ڈالرز دینے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی۔ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ معاہدے کی حتمی منظوری دے گا۔ شکیل احمد رپورٹ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے پاکستانی معیشت اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے لیے نوید آ گئی۔ قرض پروگرام بالآخر بحال۔ پاکستان کو 7ویں اور 8ویں اقتصادی جائزے کی تکمیل پر 1 ارب 17 کروڑ 70 لاکھ ڈالر یکمشت مل جائیں گے۔ آئی ایم ایف قرض پروگرام میں جون 2023 تک توسیع اور اس کا حجم بڑھا کر 7 ارب ڈالر کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ٹویٹ پیغام میں عوام کو خوشخبری سنائی۔ مدد اور تعاون پر وزیر اعظم، ساتھی وزراء اور اپنی وزارت کے حکام کا شکریہ ادا کیا۔ آئی ایم ایف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے اور پالیسی اقدامات پر عمل درآمد میں تاخیر کے باعث پاکستانی معیشت کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ جون میں مہنگائی 20% سے تجاوز کر گئی، جبکہ روپے کی قدر اور زر مبادلہ ذخائر میں تیزی سے کمی آئی۔ توانائی شعبے کے گردشی قرضے میں 850 ارب کا اضافہ ہوگا، اس سے لوڈ شیڈنگ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان نے بجلی کی قیمتوں میں بروقت اضافے، گورننس میں بہتری اور کرپشن میں کمی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ الیکٹرانک ایسٹ ڈکلیریشن سسٹم قائم کرنے کے علاوہ نیب سمیت استزادہ کرپشن کے تمام اداروں کی تحقیقات اور پروسیکیوشن کی استزادہ کار کو بہتر بنایا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے زور دیا ہے کہ پاکستان حالیہ بجٹ میں اعلان کردہ اقدامات پر مکمل عمل درآمد، اخراجات میں کمی اور ریونیو میں اضافہ یقینی بنائے۔ مشکل عالمی حالات کے تناظر میں اضافی اقدامات کے لیے بھی تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ عمران خان کے بیرونی سازش بیانیے اور جلد انتخابات کروانے کے مطالبے کو زوردار قانونی جھٹکا پہنچا ہے۔ سپریم کورٹ نے رولنگ دے کر تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا فیصلہ غیر آئینی، بدنیتی پر مبنی اور اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین سے فراڈ اور انحراف کے لیے آرٹیکل 5 کا استعمال کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، عمران خان، اسد قیصر، قاسم سوری اور فواد چودھری نے آئین شکنی کی۔ ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا فیصلہ عدالت نے پارلیمان پر چھوڑ دیا ہے۔ اسلام آباد سے دیکھیے شہزاد علی کی رپورٹ۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے تحریر کردہ اکثریتی فیصلے میں عدالت کا بیرونی مداخلت سے متعلق دلیل پر اظہار عدم اطمینان۔ کہا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، وزیر اعظم اور صدر کا سمنیہ تحلیل کرنے کا اقدام سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کے منافی، غیر قانونی اور کالعدم ہے۔ عدالت کے سامنے بیرونی سازش سے متعلق ثبوتوں میں صرف ڈپٹی اسپیکر کا بیان ہے۔ رولنگ میں نہیں بتایا گیا کہ کسی اپوزیشن رکن نے بیرون ملک سے رابطہ کیا اور حکومت گرانے میں کون شامل ہے۔ تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو پیش ہونے کے بعد 22 مارچ کو اجلاس نہ بلانا اور پھر 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کو بحث کا موقع نہ دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ 3 اپریل کی اسپیکر رولنگ شواہد پر مبنی ہونی چاہیے تھی۔ بغیر ثبوت کے کیے گئے حکومتی اقدامات کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اپنے اضافی نوٹ میں صدر مملکت عمران خان، اسد قیصر، قاسم سوری اور فواد چودھری کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دے دیا۔ کہا تحریک عدم اعتماد کو شکست دینے کے لیے آئین سے فراڈ کیا گیا۔ آئین سے انحراف کے لیے اس کے آرٹیکل 5 کو استعمال کیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ اسپیکر کا حلف لیتے وقت نیوٹرل رہنے کا عہد کرتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے اسپیکر کے ہوتے ہوئے بلا جواز اجلاس کی کارروائی چلائی۔ رولنگ پڑھ کر سنائی گئی اور اگلے 1 منٹ میں عمران خان نے صدر مملکت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو آئینی تحفظ بھی حاصل نہیں۔ ایسے کھلے انداز میں آئین سے انحراف کے نتائج قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ جسٹس مظہر عالم نے لکھا آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ پارلیمنٹ پہ چھوڑتے ہیں۔ پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ آیا مستقبل میں غیر آئینی اقدامات کے لیے دروازہ کھلا رکھنا ہے یا نہیں۔
मुल्क में जल्द आम इंतखाबात से मुतल्लिक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इजाफी नोट में लिखा कि गैर मुल्की मरासले को बगैर तहकीक की ये साजिश कहना हैरान कुन है। गैर आईनी और गैर कानूनी रवैया इस शख्स ने अपनाया जो इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज था। मुल्क में आम इंतखाबात किसी शख्स की ख्वाहिश पर नहीं करवाए जा सकते। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आज़म के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया। जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा नजरिया जरूरत को जिंदा करने के मुतरादिफ भी करार। कहा अदालतों को नजरिया जरूरत से गुरेज करना चाहिए। ये नजरिया जिंदा करने से हमेशा जमहूरियत को नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के साजिश वाले बयानिए को उड़ा के रख दिया। मरियम नवाज ने रावलपिंडी में खिताब किया, कहा इमरान खान मुल्क की तारीख का पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा और आइन शिकन कहा। हुकूमत से मुतालिबा किया कि पाकिस्तान के आइन को पामाल करने वालों पर गद्दारी के मुकदमे चलाए जाएं ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। फितना खान पाकिस्तान में बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था। नून लीग ने जान हथेली पर रखकर वो सुरंगें हटा दी। फितना खान पाकिस्तान में बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था। मुस्लिम लीग नून ने अपनी जान हथेली पर रखकर एक एक बारूदी सुरंग को अपने हाथ से हटाया है। अब मुश्किल दौर खत्म, आने वाले दिन अच्छी से अच्छी खबरें लेकर आएंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए। वो जो कहते थे कि हम आलू प्याज के रेट पता नहीं करने नहीं आए, आजकल अपनी तकरीरों में धनिए और पुदीने के रेट भी बताता है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है। इन्होंने पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रौंदा है। इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। कौन से झूठ बोला कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साजिश वाले बयानिए को भी उड़ा के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा इसने साजिश का कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने उस साकिब निसार के झूठे सादिक और अमीन की धज्जियां उड़ा के रख दी। डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग पर तफसीली फैसला क्या आया? इमरान खान ने तो उल्टा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर डाला। कहते हैं जब हमारे सदर ने मुरासला आपको भिजवा दिया था तो तहकीकात क्यों नहीं कराई? इंक्वायरी कराई जाए, मालूम किया जाए कि डोनाल्ड लू किसको धमकी दे रहा था। अगर तहकीकात ना कराई गई तो आइंदा भी अमरीका पर किसी वजीर आजम को हटाने के लिए धमकी देगा। सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जब हमारे प्रेसिडेंट ने आपके पास वो मुरासला भेजा था तो क्या आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं, 12 बजे रात को अदालतें खोल ली, लेकिन इतना बड़ा काम कि एक मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। ये तो पता चलवाते कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया। एम्बेसडर तो मेरे नीचे था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है, किसको पैगाम दे रहा था? इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बैठाएं। अगर आप इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठाएंगे तो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कभी आगे से जब भी अमेरिकन धमकी देंगे वो उनके सामने घुटनों पे पड़ जाएगा। वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। ये जो दो खानदान, तुम दोनों ने तो मुल्क का खून चूसा, तुम्हारे से तो बेहतर मुशर्रफ था। इतवार को तुम दोनों को एक ही गेंद से 2 विकेट निशाना कराऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर रूलिंग खुद नोटिस केस के तफसीली फैसले के बाद हुकूमत एक्शन में। वफाकी वजीर दाखिला राना सना ने अदालती फैसले के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दाखिला ने बताया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। काबीना से मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त मिली तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। मैं मुतालबा करता हूँ कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ओहदे पे बैठा है, उसे इतनी तो पासदारी करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसे मुस्तफ़ी होना चाहिए। इस फैसले के बाद इमरान खान न्याजी की जो सियासत है उसका जनाजा निकल गया है। इसने
अपने सियासी मफादात को, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कौमी मफाद को दांव पे लगाया। इसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। मुल्क के आइन के साथ फ्रॉड की सज़ा जो है वो आइन के आर्टिकल 5 और 6 में जो है वो दर्ज है। वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है, इसलिए इस पे काम शुरू हो चुका है। रेफरेंस बनता है, स्पीकर बाउंड है कि वो इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस जो है वो बना के इलेक्शन कमीशन को भेजे और इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्हें न सिर्फ इनको डी सीट करे बल्कि नाअहल करार दे। इमरान खान साहब गिरफ्तार हो नहीं सकते, मैं उन्हें गिरफ्तार करने को तैयार हूँ। उसके खिलाफ जो उसने जुर्म किया है, मैंने कैबिनेट से रिक्वेस्ट की हुई है, कैबिनेट जो है वो उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त मिलती है तो बिल्कुल उसको उसमें गिरफ्तार होना चाहिए। शेख रशीद साहब को तो लॉन्ग मार्च के दौरान ही जो है वो इरादा था और मैंने वैसे सच्ची बात उसको बड़ा ढूंढा उसको, लेकिन वो मिला नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। कहते हैं कि आर्टिकल 6 पर मुकदमात बनने लग गए तो गलों के लिए रस्से कम पड़ जाएंगे। फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद फैसले को पार्लियामेंट से ख़त्म करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। टाइमिंग जो है 2 दिन के बाद इलेक्शन है, आपने 4 महीने रोक लिया, 3 दिन और रोक लेते। सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं हो गई, मटेरियल प्लेस पे नहीं है। जब हमने मटेरियल लगाया था वो तो आपने पढ़ने को ही नहीं तैयार। साइफर चीफ जस्टिस साहब के पास उनके ऑफिस में सील्ड है, तो आपको चाहिए था कि ये जजमेंट लिखने से पहले अपने साथी जजेस को पढ़वा देते। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को लहू लगा हुआ है मुँह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देंगे। मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। वो काम क्या करें जो आप कर सकें। तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है, अंतर आप किसी मिशन पे हैं कि आपने एक तलखियाँ लानी है। जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं। पीटीआई 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी, इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक का फैसला नहीं किया। कल काबीना इजलास में तमाम मामलात पर बात होगी। कानून के तहत कार्रवाई में गिरफ्तारी भी होती है। प्रोग्राम 7 से 8 में वो बात कर रहे थे। बात रहती सिर्फ तरीके अदम एतमाद को खत्म करने की हद तक तो शायद ये इस तरह से केस ना बनता, लेकिन उसके सब्सिक्वेंट रास्ता हमवार किया गया नेशनल असम्बली की तहलील का। और अब ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी वाज़े तौर पे कह दी गई कि डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी बदनीयती की बुनियाद पे ताकि वजीर आजम के हाथ खुले और वो असम्बली तहलील करके तहरीके अदम एतमाद से निजात हासिल कर ले। तो इससे बड़ा प्लॉट क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का। तो ये बिल्कुल आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है। कानून की कार्रवाई जब होती है गिरफ्तारी उसमें शामिल होती है। सर मौजूदा हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने सर सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाने का भी डिसीजन ले लिया है सर? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई डिसीजन नहीं अभी तक, बिल्कुल ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। कल कैबिनेट मीटिंग होगी, ये सारी बातें उसमें होंगी। धांधली धांधली का शोर करने वाले इमरान खान को मरियम नवाज ने करारा जवाब दिया। कलर सैदा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, इलेक्शन से कबल जमात के सरबराह को धांधली के जरिए नाअहल करके जेल में डालने को धांधली कहा जाता है। नून लीग ने किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, डरते क्यों हो, आओ मैदान में शेर का मुकाबला करो। इमरान खान साहब, धांधली वो होती है कि इलेक्शन से पहले
जमात के सरबराह को डिस्क्वालीफाई करके जेल में बंद कर दो। इमरान खान, तुम्हें किसी ने जेल में बंद किया? धांधली तो वो होती है कि नवाज शरीफ की और मरियम की तकरीरों पर टीवी पर बैन लगा दो। तुम तो रोज दिन में 3-3 दफा आकर कौम का मगज खाते हो, कौम का मगज खाते हो। धांधली वो होती है जो नवाज शरीफ के कैंडिडेट से थप्पड़ मार कर उनको कहा कि चुप करके मुस्लिम लीग नून की टिकट वापस कर दो। फितना खान, मुस्लिम लीग नून ने किसी को साजिश के जरिए बाहर नहीं किया, तो डरते क्या हो? आओ मैदान में मुकाबला करो शेर के साथ। इमरान खान साहब, ABC पढ़ानी है तो मैं पढ़ाऊं? G से गोगी होता है, P से पिंकी पीरनी होता है, और मिस्टर X उन सब का सरगना इमरान खान होता है। तो इस पंजाब दुश्मन इमरान खान को उठाओ और पंजाब की सरहदों से बाहर फेंक दो। 17 जुलाई को PP7 में कौन धाड़ेगा? पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम जारी कर दी। 696 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 1204 हसास करार। लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया गया है। और PTI के रहनुमा कासिम सूरी और जुबैर नियाजी की गाड़ी भगकर जाते हुए उलट गई, दोनों महफूज रहे। और अब जिक्र कराची के खुशगवार मौसम का। कराची में मॉनसून का दूसरा स्पेल, बरस पड़ा। शाम होते ही शहर में बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश भी हुई है। आपको बताएं, महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 से 18 जुलाई तक कराची में मूसलाधार बारिशें होंगी। आज शाम शादमान, बफर जोन, सखी हसन और नागन चौरंगी में कुछ देर तेज बारिश हुई, जबकि गुलजार हिजरी, स्कीम 33, नाजिमाबाद और अतराफ में हल्की बारिश हुई। कराची में शदीद बारिश की पेशगोई के बावजूद नागन चौरंगी नाले की सफाई ना हो सकी। मशीनरी और अमला भी गायब है। अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो नागन चौरंगी का क्या होगा, ये हमें बता रहे हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक। जगह है नागन चौरंगी, जो सखी हसन से आने वाला ट्रैक है, ये पूरा डूबा हुआ होता है। अब से कुछ देर कबल भी थोड़ी सी बारिश हुई है जिसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं, मगर यह हैरान कुन तौर पर हम आपको ये बताएं कि यहाँ पर जब भी बारिश की पेशगोई होती थी तो इंतज़ामिया अलर्ट ज़रूर नज़र आती थी। इलाका साफ़ हो, नाले साफ़ हो या ना हो, मशीनरी ज़रूर होती थी। हम आपको ये दिखाएं कि नाले का हशर क्या है। 2 रोज़ कबल ये नाला चौक हो चुका था और इसकी वजह से ये पूरा इलाका डूब चुका था और घुटनों घुटनों यहाँ पानी था। ये मैं आपको कैमरामैन अकबर अली दिखाएंगे कि ये जो अपार्टमेंट है, रिहायशी अपार्टमेंट, इसके सैकड़ों हज़ारों मकीन महसूर हो जाते हैं जब यहाँ पर पानी आता है और ये पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब होता है। हैरान कुन तौर पर आज यहाँ पर ना कोई मशीनरी है, ना कोई इंतज़ामिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अलालत के बायस आइसोलेशन में है। शायद इसी का फ़ायदा उठाते हुए अमला भी गायब है। कोई भी सफाई करने वाला अमला यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा है। तेज़ बारिश जिसका इम्कान मौजूद है, अगर वो हुई तो ये यकीनन उसी तरह डूबेगा इलाका जिस तरह हर बारिश में डूबता है। जी, इरफान अपडेट कर रहे थे। चले लाहौर की बात करते हैं, जहां सुबह से जारी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नवीन अली रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में सुबह सवेरे छाई काली घटाएं और देखते ही देखते बादल बरसे तो खुलकर बरसे। सब्जा धुला तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। बारिश का पानी सड़कों पर जमा ना हो और मसाइल कम से कम हो, इसके लिए इंतजामिया का सारा अमला अफसरान समेत सड़कों पर आ गया। इतना ही नहीं, सियासी रहनुमा भी वासा के हमले के हमरा सड़कों पर अपनी निगरानी में काम कराते दिखाई दिए। ये हमारा काम तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ से पानी नहीं निकले, जब तक ये बारिश नहीं रुकेगी, जब तक उस टाइम तक हम इधर ही हैं। अब तक लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 104 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जबकि फर्रुखाबाद 101, गुलशन रावी में 78, गुलबर्ग 57, समनाबाद 50, एयरपोर्ट पर 45, जबकि जेल रोड पर 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक वक्फे से जारी रहेगा। बारिशों और सैलाब के बाद अपर चित्राल का मुल्क के दीगर इलाकों से राब्ता एक हफ्ते बाद भी बहाल न हो सका। इलाके में अशियाए खुरनोश और पेट्रोल की किल्लत हो गई है। सैफुर रहमान अजीज की रिपोर्ट। अपर चित्राल के मकीनों की मुश्किलात कम न हुई। रेशून के मकाम पर चित्राल गिलगित शाहरा को दरिया बुर्द हुए एक हफ्ता गुजर गया। जिला भर में पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक खत्म हो गया है। अशिया खुरोनोश और अद्वियात की किल्लत भी शुरू हो गई। सड़क पर पैदल सफर करना भी दुश्वार है। लोअर चित्राल से अपर चित्राल जाने के लिए पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक तेल पेट्रोल तक भी असर नहीं है। खाने के रशीन खत्म हो चुके हैं, दुकानों में रशीन खत्म हो चुके हैं, तमाम बच्चे रो रहे हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अपर चित्राल की मजीद 3 वादियों यारखून, बरोगल और लासपुर मस्तोज में भी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है। वजीर आजम के मावून खुसूसी बराए सियासी उमूर इंजीनियर अमीर मकाम मुतासरीन की दाद रसी के लिए पहुँचे। मेरे आने का फायदा चित्राली आवाम को होना चाहिए। इस तरह नहीं कि मेरे से इतने दूर से और यहाँ आके और सब कुछ छोड़कर और फिर तो ही उसको फौरन काम शुरू कर लेना चाहिए कि काम शुरू करे, रात को करते दिन को करते, एक काम करे और आवाम को रिलीफ दे। इलाके के अवाम ने पर चित्राल जाने वाली सड़क फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। कराची के इलाके सहराकोट में एहतजाज के बायस सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की आमद रफ्त मुअत्तल हो गई। इसी के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हुआ। वज़ीर आला ने सारे के सारे मामले का नोटिस ले लिया है। अहमद रहमान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। सोहराब गोट पर हंगामा आराई और तोड़फोड़। कराची के इलाके सोहराब गोट पर एहतजाज किया गया। सूरत हाल जब खराब हुई, मुजाहिरीन ने पुलिस चौकी पर पथराव करते हुए टायर नजरे आतिश कर दिए। एहतजाज की वजह से सोहराब गोट में ट्रैफिक की रवानी रुक गई और शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। पहले मैं स्कीम 33 में था, वहाँ पे मद्रास तक से यहाँ तक आने में मुझे 1 घंटा लगा है। मद्रास तक सिर्फ 1 मिनट का रास्ता है। हमें अभी बिल्कुल मालूम नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन सोहराब गोट पे पथराव हो रहा था। अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 से 1.5 घंटा हो गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सोहराब गोट वाक़े का नोटिस लेते हुए कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कहा कि आप कम्युनिटी से एंगेज करें और उन्हें बताएं कि जुर्म को जुर्म की तरीके से हमने लिया है और ये इंतशार फैलाने से आप माहौल खराब ना करें। पुलिस और इंतजामिया के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शाम से होने वाला ट्रैफिक जाम कई घंटों बाद बहाल हो गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर संजय साधवानी, खुर्शीद आलम के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुल्तान में जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब कर रहे हैं। 400 अटैक करता है जिसमें औरतें, बच्चे, बेकसूर लोग मारे जाते हैं और एक लफ्ज इन दोनों ना जरदारी के मुंह से निकलता है ना नवाज शरीफ के मुंह से निकलता है। और अगर आपने देखना है कि इस 22 करोड़ अवाम का प्राइम मिनिस्टर अमरीकी सदर के सामने कैसे बैठा हुआ है, तो जरा देखे मुजाहरा फरमाएं जी। Thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Kimaya and Dal is waiting. अच्छा ये जरा अच्छा अब ये देखें कि हमारा वजीर आजम अमेरिका के एयरपोर्ट पे उसे क्या हो रहा है, ये जरा देखें। नहीं ओहो अरे बस मैं ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं पाकिस्तानियों कि मैं आया क्यों मैं आपको जगा रहा हूं।
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ملتان میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ کو لیے چلتے ہیں خوشاب، جہاں نون لیگ کا جلسہ بھی جاری ہے اور مریم نواز اب یہاں پر پہنچ چکی ہیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جلسہ گاہ کے، مریم نواز یہاں پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بڑی تعداد ہے کارکنان کی جو ان کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے خطاب کرنا ہے۔ اس سے پہلے کلر سیدہ میں بھی انہوں نے خطاب کیا تھا، جہاں طنز کے نشتر چلائے تھے انہوں نے عمران خان کے اوپر، اور اس وقت آپ خوشاب کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر شاندار ویلکم کیا گیا ہے مریم نواز کو، اور آتش بازی کا بھی یہاں پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بڑی تعداد ہے، کثیر تعداد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کی، اور وہ اب سے کچھ ہی دیر میں جب مریم نواز یہاں پر خطاب کریں گی تو دیکھنا ہوگا کہ مریم نواز خوشاب کے لوگوں کو کیا پیغام دیتی ہیں۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں فرح خان کی قیمتی جائیداد نکل آئی ہے۔ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کی دوست فرح خان نے گھر سیکٹر F7 میں 20 کروڑ روپے میں شاندانہ آوان سے خریدا تھا۔ نیب نے شاندانہ آوان کو 19 جولائی کو طلب کر لیا۔ نوٹس کے مطابق فرح خان اور شاندانہ کے درمیان بڑی ٹرانزیکشنز کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب فرح خان کے شوہر احسن گجر نے سما سے گفتگو میں کہا کہ گھر کی ٹرانسفر CDA کے ذریعے ہوئی، اس سلسلے میں تمام ٹیکس ادا کیے گئے، ضرورت پڑی تو وہ نیب کے سامنے حاضر ہونے کو تیار بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا سب کچھ پاکستان میں ہے، لازمی وطن واپس آئیں گے۔ آپ کو اس اہم معاملے کے بارے میں بتا دیں، اسلام آباد کا پوش علاقہ، یہاں فرح خان کی قیمتی جائیداد سامنے آئی۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی سہیلی فرح خان نے گھر سیکٹر F7 میں 20 کروڑ روپے میں شاندانہ آوان سے خریدا۔ نیب نے شاندانہ آوان کو 19 جولائی کو بلا لیا ہے، طلب کر لیا ہے۔ نوٹس کے مطابق فرح خان اور شاندانہ کے درمیان بڑی ٹرانزیکشن کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ہوا کہ فرح خان کے شوہر احسن گجر نے سما سے گفتگو میں کہا کہ گھر کی ٹرانسفر CDA کے ذریعے ہوئی تھی۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی ساتھی فرح خان نے نیب میں اپنی طلبی کے نوٹسز روکنے کے لیے وکیل کے توسط سے نیب کو ہی قانونی نوٹس بھجوا دیا ہے۔ فرح خان کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے نیب کو نوٹس بھجوایا ہے، جس میں فرح خان کے خلاف کارروائی روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ نیب کو ایک پرائیویٹ شخص کے خلاف انکوائری کا کوئی اختیار نہیں، کرپشن کا کوئی ثبوت نیب کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا، قائم مقام چیئرمین اس قسم کی کارروائی کا اختیار نہیں رکھتے۔ حالیہ ترامیم کے بعد یہ معاملہ نیب کے دائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں، لہٰذا نیب نوٹسز فوری طور پر واپس لیے جائیں۔ اگر طلبی کا نوٹس واپس نہ لیا گیا تو اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کے قریبی ساتھی فرح خان نے نیب میں اپنی طلبی کے نوٹسز روکنے کے لیے وکیل کے توسط سے نیب کو قانونی نوٹس بھجوا دیا ہے۔ فرح خان کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے نیب کو نوٹس بھجوایا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فرح خان کے خلاف کارروائی روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اینٹی کرپشن میں طلبی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ رجسٹرار آفس نے شیخ رشید کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیا۔ شیخ رشید نے اپنے وکیل کی وساطت سے درخواست دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے شیخ رشید کے بیان حلفی پر دستخط موجود نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا گیا۔ جسٹس فاروق حیدر 15 جولائی کو بطور اعتراضی درخواست سماعت کریں گے۔ شیخ رشید کی درخواست میں چیف سیکریٹری، اینٹی کرپشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار شیخ رشید نے موقف اختیار کیا کہ اینٹی کرپشن کی طلبی کے نوٹسز بدنیتی پر مبنی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ 17 جولائی کو الیکشن میں مداخلت ہوئی تو عمران خان قوم کو کال دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے درخواست ہے کہ الیکشن شفاف ہونے دیں، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، گڑبڑ ہوئی تو سارا ملبہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر گرے گا۔ اگر اس 17 جولائی میں 20 سیٹوں پہ مداخلت ہوئی تو میں وقت سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان قوم کو کال دے گا۔ کسی نے دھاندلی کی، جھرلو پھیرا تو یہ لاہور ہے، اور جب لاہور جاگتا ہے تو پھر وہ جاگتا ہے۔
और कोई फौज अवाम पे गोली नहीं चला सकती। तमाम अदारों को इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक फेयर इलेक्शन होने दे, इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो। मैं तो जब चाहूँगा ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक इमरान खान की ठीक ना हो, मेरी ठीक नहीं होनी चाहिए। 17 के बाद आप देख लेना, नून और शीन खुल कर आएंगी। क्यों नहीं आ रहा इसहाक डार जनाब? क्यों नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब? भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है। असलात नवाज शरीफ से हुआ है, उसके दिल को कोई टटोल के पूछे कि उससे क्या हुआ है, और उसकी ख्वाहिश जो उसके दिल में नाम है, वो नाम धरा रह जाएगा और होगा वही जो शहबाज जरदारी और फजल रहमान करेंगे। इन सारे लोगों ने अपना सियासी फैसला ले दे के किया। एक दिन में 4 मरतबा कोर्ट टूटा है मरियम बीबी के पासपोर्ट के लिए। ये गवर्नमेंट जो बनाई गई है, इसमें सर्टन गिव एंड टेक्स हुए हैं। मैं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन 45 दिन के अंदर अंदर सारी कौम को पता लग जाए। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।